with JDK 1.5, a feature was introduced named generic, and nowadays it is very common to use with collection. You have already used with collection. Okay, so let's see what is generic and what is the requirement, why generic came into existence, what was the requirement behind the requirement of generic. Okay, so generics is basically uh, used to operate on different types without sacrificing the safety. So before continuing with generic, I want to show you one program. Okay, let's see that program. I will just share my whole screen, then it would be better. See, let's close this. See, is it visible on your screen, students? Students, Yes, sir. okay, Yes, Yes, sir. sir. okay. So it's a small concept. You just have to see the why it is required, then you will automatically understand. See, we have a class, and in this class we have four different types of array. So you just think about the data type of the array. The first in array is of type data type integer. The second one is array of strings. The third one is array of double value, and the fourth one is array of characters. Okay, I hope the font is okay. Is it required to increase? So we have four different kinds of array, basically four different data types. The array of four different data types having some value. Suppose we have an input array of integer type with value 1 2 3 4 5 6. We have a string array with value 1 2 3 4 in string. We have a double array that is 1.1 2.2 and like that, and a character array like abcd up to h. Now what we want is, we want a method which will iterate through the elements of this array and then print on the console. So what we have done is, so what are the ways that we can use? Because we have an array, so any time when we are passing any parameter to the method, the data type must match. So what we have done is, we have print array methods. So we have four methods with same name but different different type of arguments. So what is this called? At first I want to know. Any one of you can say what is this technique called, that we have same method name but with different data type of arguments? Sir, method overloading. Method overloading. And if the same thing occurs in different classes, in case of inheritance, what it is called? Sir, we can also do it by using constructor. Constructor. That is okay, but my question is, if two methods with same name
are available in parent and child class, then what will be the concept? What will be The the name of polymorphism. Met- polymorphism? Polymorphism. Method overridden. Overriding, overloading. method overriding. Okay. So for in the same class, currently we are using overloading. So if till now there is no issue because we have called method print array and we are passing here input array. We can name it as integer array also, so that it will be easy to distinguish with data type. So we have integer array. So whenever this print array will be called, the compiler will look after if any methods is available which accept the parameter of integer array data type. Okay, so let's check. We have method print array which accepts integer array. So no issue with this statement. Let's come to the next one. The compiler will look after any method which can accept array of string. So is there any method available like this? We have a method available. Okay, and same with double type and character array type. Now let's run this. Okay, so when the program will be executed, at first the main method will be invoked and 4 different kinds of array will be created, and one by one the method will be called. So first we have called integer array. So it will print 1 2 3 4 5 6. Okay, then we have called string array. It will be called then double and then character array. Now what you can see is there is only one difference in these methods, that is of data type. Others, the remaining code is exactly same. The remaining code is exactly same. But what is being changed here is data type only. So now is there any method? Now these are the 4 types of array. Now if imagine that we have some other array as well, other types of array like any class type. Okay, any different types of classes are there and we are calling the object array of that class. Okay, so wait, I think someone is here to join. मैं प्रिंट कराना चाहता हूं उनकी वैल्यू. So whenever we are going to print value of this array, we have to make different methods or we have to use method overloading. So यहाँ क्या हो रहा है कि exactly others code are same, ठीक है, and the change is at this location, that is the data type that we are passing. So ये सोचा गया कि जो जावा बनाने वाले थे, जो जावा के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं एक सिंगल मेथड बनाऊं और वो मेरे लगभग सारे ही डेटा टाइप को, जो भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है उन सबको ये एक साथ ही वर्क करे. मतलब एक सिंगल मेथड बनाऊं और वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर ले कि मेरा इंटीजर टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिंट कर दे. स्ट्रिंग टाइप का है, उसको उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिंट कर ले. डबल अगर है तो उसे प्रिंट कर दे. कैरेक्टर टाइप का है तो उसको प्रिंट कर दे. मुझे 4 अलग अलग मेथड, ये जो कोड रिडंडेंसी हो रही है, इस कोड रिडंडेंसी की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, ये कोड रिडंडेंसी जो 4 अलग बन रहे हैं इसकी ज़रूरत ना पड़े.
ठीक है। तो अब इसके लिए जो है एक कंसेप्ट आया किसका, जेनेरिक का। ठीक है, प्रॉब्लम आप समझ गए, आप लोग प्रॉब्लम समझे पहले। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. तो प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है आपका जेनेरिक का कंसेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। अब जेनेरिक का कंसेप्ट क्या कहता है, उसका एग्जांपल देखिए पहले, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सेम टाइप का है कुछ, है ना। जैसे मेरे पास एक क्लास है, इस क्लास के अंदर सेट कर रहा हूँ मैं कोई वैल्यू, और उस वैल्यू को मैं गेट कर रहा हूँ सिंपली। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया है, एक क्लास है मेरा, उस क्लास के अंदर मैंने दो मेथड बनाए, एक सेट करने वाला और एक गेट करने वाला, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल यहाँ लिया है। ठीक है, अब ये हर बार करता करेगा क्या कि उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें सेट करेगा वैल्यू, और वापस उसको गेट करके प्रिंट कर लेगा। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसका मैंने सेट मेथड कॉल किया, यहाँ ये सेट मेथड कॉल करेगा, तो फिर ये चेक करेगा कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसी चीज के लिए जो है जेनेरिक का कंसेप्ट आया कि अगर मैं चाह रहा हूँ जेनेरिक डेटा टाइप, तो मैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कोई एक वेरिएबल ले लूंगा, और कंपाइलर क्या करेगा कि कंपाइल टाइम में, फिर से सुनिएगा, कंपाइलर क्या करेगा कि कंपाइल टाइम में इस इस डेटा टाइप जो मैंने लिया है जेनेरिक डेटा टाइप, इसको ये रिप्लेस कर देगा उस डेटा टाइप जिसकी वैल्यू हम पास कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखिएगा, मैंने क्या किया, ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो है एक जेनेरिक टाइप इस तरह से लिया जाता है, एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, उसके अंदर आप कोई एक वेरिएबल अपने हिसाब से ले सकते हैं। वो वेरिएबल बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा उस डेटा टाइप को, ठीक है, जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने एक सेम सिंगल वैल्यू जो है, सिंगल मेथड, ऐसा नहीं कि मैंने स्ट्रिंग के लिए जो है इस तरह से बनाया कि एक मेरा स्ट्रिंग का हो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि यहाँ पे मेरा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का हो। देखिए, ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं किया गया है। मैंने यहाँ पर अलग अलग मेथड नहीं बनाया कि अगर मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू पास करनी हो तो मैं एक स्ट्रिंग का मेथड बनाऊँ, मैं मुझे अगर डबल की वैल्यू पास करनी हो, डबल डेटा टाइप का, तो मैं डबल बनाऊँ, ऐसा नहीं किया गया। एक सिंगल यूज किया गया है, और वो सिंगल जो है आपके इस पूरे को पूरे पे वर्क कर रहा है, चाहे मैं उसमें स्ट्रिंग का डेटा टाइप पास करूँ, चाहे मैं इंट पास करूँ, चाहे मैं डबल वैल्यू पास करूँ, चाहे कैरेक्टर पास करूँ, चाहे लॉन्ग पास करूँ, ये सबके लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, मैंने स्ट्रिंग पास किया, इसने स्ट्रिंग की वैल्यू पे काम किया, मैंने इंट पास किया, इसने इंट की वैल्यू पे पास किया। बस रिक्वायरमेंट ये है कि जिस समय आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आप इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको उस डेटा टाइप से जो आप भेज रहे हैं। ठीक है, आपको इसको बताना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है क्या करेगा, कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम, जैसे ये कॉलिंग हो रही है ना, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा इस डेटा टाइप से। इस ये जो वर्क हुआ अभी, जो मैंने अभी लाइन बोली, ठीक है, इसका एक बड़ा अच्छा नेम है, इसमें जनरली क्वेश्चंस कभी कभी पूछे भी जाते हैं कि डेटा टाइप इरेजर क्या होता है। तो ये डेटा टाइप जो अभी मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड इरेजर, इरेजिंग। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो डेटा टाइप है इसको रिप्लेस कर दिया गया उस डेटा टाइप से जो मैंने कॉल किया। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि जब आप करेक्शन पढ़ रहे थे या लिस्ट मैंने बताया, तो वहां मैंने इस तरह का दिया था आपको एग्जांपल। ठीक है, वहाँ मैंने आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिया था जहाँ पर ये बताया गया था कि अगर आप डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं तो ये, अगर आप डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं तो ये इस तरह का डेटा ही एक्सेप्ट करेगा। यस, कोई पूछना चाह रहे हैं।
सर जो आप डॉट सेट वैल्यू से पहले स्ट्रिंग बॉक्स इंट बॉक्स लिए हैं वो क्या है सर? ये ऑब्जेक्ट ये बनाया, इससे ये पहले। ऑब्जेक्ट बनाया है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए जनरली आपका क्लास का आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? देखिए अगर मेरा कोई बॉक्स क्लास है तो आप ऐसे ही बनाते हैं, राइट? ऐसे ही बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट, ये सर, ये सर। ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के साथ मान लिया अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ आप उस क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, यस सर। क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। बस यही काम हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि अब चूंकि मैं जेनेरिक डेटा टाइप हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्लास को ये भी बता रहा हूँ कि आप कौन सा डेटा टाइप पास करने वाले हैं, बस। ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि मुझे अगर देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 4 डिफरेंट डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स पास कर रहा हूँ, तो वो मेरा जो है वो सिंगल से ही हैंडल हो गया कि नहीं? यस सर। अभी देखिए मुझे सेट वैल्यू क्या अलग-अलग डेटा टाइप के लिए बनाने की ज़रूरत पड़ी है, जिस तरह से मैंने यहाँ बनाया था कि मुझे इंटीजर के लिए अलग बनाना पड़ा, स्ट्रिंग के लिए अलग बनाना पड़ा, डबल के लिए अलग बनाना पड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे क्या करना पड़ा, एक सिंगल टाइप जो मैंने इसको ये दिया, इसके ये तरीका है देने का। आप कहेंगे कि ये क्यों दिया? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आप टी की जगह ई ले लीजिएगा, ये तब भी काम करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नीचे भी वही लेना है डेटा टाइप जो आपने ऊपर वेरिएबल का नाम लिया है। तो वो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट इसमें है सर। इसमें ये डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अच्छा सर, हाँ, ठीक है। ठीक है। आप इसके अंदर जिस भी डेटा टाइप पे काम करेंगे, वो इस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। आप अगर आप देखिए ये किस तरह की वैल्यू है, आप बता सकते हैं? स्ट्रिंग है, यस सर। स्ट्रिंग है। तो रन टाइम में क्या होगा, सॉरी कंपाइल टाइम में क्या होगा कि ये इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इंटरनली क्या होगा कि जब ये रन करेगा तो ये इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा, इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा जब कंपाइलर वर्क करेगा तो। सर तो ठीक है। मतलब जब मेन फंक्शन जब सर कॉल होता है तो हम्म, वो हर एक बॉक्स स्ट्रिंग जो हम लोग लिया सर, तो पहले वो उसको कॉल करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। यस। फिर बॉक्स एक लेगा, फिर वो उस वहां पे जा करके बॉक्स के अंदर जो हम लोग वेरिएबल मतलब रखे हैं, जो भी एक वो वैल्यू हाँ है, हाँ। वो उसको इंटीजर वैल्यू समझ के वो कर देगा, प्रिंट कर हाँ देगा। हाँ, ऐसा होगा सर? देखिए प्रॉब्लम समझिए और सॉल्यूशन समझिए। प्रॉब्लम क्या हो रही थी मेरे पास कि अगर मुझे गेट वैल्यू और सेट वैल्यू नाम का मेथड कॉल करना हो, ये मैंने एग्जांपल लिया है, बड़े मेथड्स भी हो सकते हैं, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, बड़े कई सारे उसमें स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एक सिंपल लिया है कि एक मेरा क्लास हो जिसके अंदर एक मेथड हो जो मेरा वैल्यू सेट कर दे इसके वेरिएबल में, और एक हो जो मेरा वापस रिटर्न कर दे सेट किया हुआ वैल्यू। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है मेथड, ये मेरा वर्क करे किस पर? स्ट्रिंग पर भी, इंटीजर पर भी, डबल पे भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए मुझे यहाँ पे ओवर लोडिंग ना करना पड़े। अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं ये नहीं करता तो बताइए कि मुझे क्या करना पड़ता? आप बताइए। मुझे करना पड़ता ये कि मुझे एक स्ट्रिंग के लिए बनाना पड़ता और एक हम लोग को इंटीजर के लिए। सर सबके लिए अलग कॉल करना सब पड़ता बिल्कुल है सर। करेक्ट करेक्ट, अब सही आ पाया। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ता। ठीक है, अगर मेरा प्राइवेट है तो मुझे सॉरी अगर मेरा स्ट्रिंग है तो मुझे स्ट्रिंग के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता, और इंटीजर के लिए मुझे अलग लेना पड़ता। ठीक है, सपोज अगर देखिए अगर मैं इसको बगैर उसके करता, मैं इसको बगैर जेनरिक का यूज किए करता, तो मेरे पास सपोज 5 अलग तरह के हैं। तो मैं क्या करता, डबल, पहले तो मुझे, चलिए पहले 3 करके दिखाता हूँ, ठीक है? बाकी 2 तो आप समझ जाइए कि वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर मुझे क्या करना पड़ता? मुझे इनकी भी ओवरराइडिंग गेट करनी वैल्यू और पड़ती। सेट वैल्यू को सर हाँ, मतलब अलग अलग करना हाँ, पड़ता इनकी भी ओवरराइडिंग करनी पड़ती, ठीक है? अब मुझे करना पड़ता है ये, ठीक है? और ये, और यहाँ मेरा हो जाता इंट वैल्यू, इंट वैल्यू, इंट वैल्यू, इंट वैल्यू।
ये करना पड़ता। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ठीक है। इसका मुझे नाम कुछ और चेंज करना पड़ता फिर। ठीक है, सॉरी, सेट वैल्यू के लिए और गेट वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग मेथड्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सेट, अच्छा यहाँ पे आप ये बताइए कि गेट वैल्यू ने, देखिए सेट वैल्यू तो काम कर गया यहाँ पे, सेम मेथड नेम ओवरराइडिंग काम कर गया। आप में से कोई बता सकता है कि गेट वैल्यू क्यों बता रहा है, जब सेट वैल्यू में मैंने सेम काम किया और ये सही काम कर रहा है। बट गेट वैल्यू जो है ये कह रहा है कि डुप्लीकेट मेथड है, तो ओवरराइडिंग में ये क्यों नहीं काम कर रहा है? कोई बता सकता है? क्वेश्चन समझे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन में ये जेनेरिक का यूज किया गया। ठीक है, अब जेनेरिक में कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि अगर हम लोग इस पे जेनेरिक जो है वो स्पेसिफाई करता है कौन कौन सा डेटा टाइप पे, तो वो डेटा टाइप जो अब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, मतलब अच्छा ऑपरेशंस भी कॉमन होने चाहिए इस पे। ठीक है, जैसे देखिए अगर मेरा यहाँ पर ये है, देखिए मैं इसकी बात करूँ अगर, ठीक है, मैं अगर इसकी बात करूँ, देखिए यहाँ पे कॉमन टाइप के ऑपरेशंस हो रहे हैं, सॉरी यहाँ कॉमन टाइप के ऑपरेशंस हो रहे हैं। कॉमन टाइप के ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं? उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है। ये पता है ना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो है वो किस तरह के डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है? ठीक है, आप जो प्रिंटलन करते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, ये इनको कन्वर्ट करने का काम करता है स्ट्रिंग पे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट का क्या होता है, जो आप वैल्यू इसमें पास करते हैं वो किस टाइप का होता है? प्रिंट दिख रहा है कहीं? काफ़ी बड़ा क्लास है ये बेसिकली, कहीं दिख रहा है प्रिंट? दिखेगा, देखिएगा तो बताइएगा। चीज़ों को ना इस तरह से उसके क्लास फाइल को भी आप जरूर देखिए। जावा जो है ओपन सोर्स है, आप उसके क्लास फाइल में जो उसने कर रखा है वो भी आप देख सकते हैं, जावा ने इसकी कोडिंग किस तरह से कर रखी है। ठीक है, तो बीच बीच में इन सब चीज़ों को भी देखा कीजिए, सिर्फ अपने कोड को ही नहीं। जावा ने कैसे कोडिंग कर रखी है, क्या रूल्स फॉलो कर रखे हैं, हर एक के साथ जो है उसने कैसे एक्सेप्शन को हैंडल किया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी एक बार देखते चलिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हालांकि इससे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती नहीं, बट एक दो चीज़ें आपको जरूर क्लियर हो जाएगी कि एक्सेप्शंस हैंडल करता है ये। ठीक है, कोड लिखने का तरीका, ये सब चीज़ें। खैर हम लोग यहाँ थे कि ये जो कंपाइलर है ये सिर्फ ये नहीं चेक करेगा कि डेटा टाइप मैच कर रहा है कि नहीं, ये भी चेक करेगा कि उसके अंदर ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर पॉसिबल भी हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट, देखो अगर ये नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल होता तो ये क्या करता? ठीक है, यहाँ पे इसने क्यों, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के ऊपर तो लेंथ का मेथड काम करेगा, लेकिन इस समय इसका डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं है, इसीलिए ये कंफ्यूज है कि ये किस तरह का डेटा टाइप है और उससे रिलेटेड मेथड्स को आपको लिस्ट आउट नहीं कर पा रहा। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग वेरिएबल होता और फिर मैं उसके ऊपर लेंथ का पास करता, ठीक है, तो ये मुझे सजेशन दे रहा है। लेकिन जब आप जेनरिक का यूज करेंगे तो आपको जो है वो किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप से रिलेटेड मेथड या फंक्शंस आपको अलाउड नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
A lightweight process that executes a sequence of instructions. Which class is used to create a thread in Java? Thread. How can synchronization be achieved in Java threads? Using the synchronized keyword. What is the purpose of the wait method in Java threads? To pause the execution of a thread. Which method is used to start the execution of a thread? Start. What is the maximum number of threads that can be created in a Java program? There is no fixed limit. What is the purpose of the join method in Java threads? To wait for a thread to finish its execution. What is the main advantage of multi-threading in Java? Mantasha joined.
Improve program performance. Thread priority in Java is integer. What will happen if two threads of the same priority are called to be processed simultaneously? What will happen if two thread priority? It is dependent on the It operating is system. dependent on the operating system. Which of these statements is incorrect? A thread can exist only in two states, running and blocked. What requires less resources? Thread. What decides thread priority? Thread scheduler. What is true about time slicing? Time slicing is the process to divide the available CPU time to available hour.
Deadlock is a situation when thread is waiting for other thread to release acquired object. True. What should not be done to avoid deadlock? Execute foreign code while holding a lock. What is true about threading? Start method creates new thread and calls code written in run method. Final question. Double points. Which of the following is a correct constructor for thread? Thread runnable A, string str. Third place, Kuldeep Kumar. Second place, Ashvia Sahika. And the winner is Vaishnavi. सर क्लोज कर दे वो गेम को। हाँ, अब आप गेम को क्लोज कर दीजिए।
ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे या क्लास में जो बताया गया, ये उससे कुछ हटकर था या लगभग वही था? बहुत सारा क्वेश्चन सर, बहुत नया था। मतलब हम एक्चुअली आप जो पीपीटी सेंड किए सर, हम उसको गो थ्रू नहीं कर पाए थे, तो डिफरेंट था सर बहुत सारा क्वेश्चन। मतलब और काफी रश था, जल्दी जल्दी करना था, तो इसी के लिए। नहीं, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो है इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के द्वारा डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चंस थे। आपको मैं ये भी बता दूं, फ्रेशर लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें से कम इसमें 10 ऐसे हैं जो वहाँ से पिक किए गए हैं। ठीक है वैष्णवी, वेरी गुड। इसमें आई थिंक Thank you. वैष्णवी ने फर्स्ट रैंक लाए, वैष्णवी सेकंड पे आसफिया है, थर्ड पे कुलदीप है। कोई बात नहीं, वैष्णवी का पहले भी अच्छा था, वो लास्ट टाइम में उसका थोड़ा गड़बड़ हो गया था लास्ट में भी, अदरवाइज जो हुआ था कोई, उसमें भी वैष्णवी टॉप पे चल रही थी। अच्छी बात है वैष्णवी। क्या वैष्णवी के लिए एक बार हम लोग क्लैप कर सकते हैं?